Welcome to the Law Series. In this video, we will discuss the Constitution of India simplified for law aspirants. This is a dedicated video series for judicial aspirants, LLM entrance candidates, and anyone preparing for competitive legal exams. Here we break down the Constitution of India one concept at a time. Whether you are a beginner or revising for your mains, the series covers historical foundation, key provisions, important acts and amendments, exam relevant interpretations, and all of these is done in bilingual because it will include both English and Hindi. From the Government of India Acts to fundamental rights, directive principles to federalism, we will guide you through each topic in a simple, structured, and exam focused manner. Stay tuned. Take notes and strengthen your constitutional law foundation with us. Our first topic is Indian Councils Act 1909. This act is also known as मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. इसका नाम पड़ा दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के नाम पर, जॉन मॉर्ले जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और लॉर्ड मिंटो जो उस समय के वाइसरॉय थे. So the first point is a separate electorate for Muslims. The most controversial provision of this act was the introduction of a separate electorate for Muslims. इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स अपने अलग रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट कर सकेंगे. दिस मूव was aimed at dividing Hindu and Muslims. ब्रिटिशर्स का ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक पार्ट था. दिस एक्ट लीगली रिकॉग्नाइज्ड कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स. इस वजह से लॉर्ड मिंटो को कहा गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट था जो आगे जाके देश की यूनिटी को इफेक्ट करेगा. Second point is expansion of legislative councils. The size of both central and provincial legislative council was increased. बट और ज्यादा मेंबर्स इंक्लूड किए जा सकते थे इन काउंसिल्स में, बट नहीं किए गए. बट रिमेंबर दीज इंडियन मेंबर्स हैड वेरी लिमिटेड पावर्स. पार्टीशन बढ़ा लेकिन डिसीजन मेकिंग पर कंट्रोल नहीं दिया गया. एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, असली पावर अब भी ब्रिटिशर्स के हैंड में ही थी. And the last point is association of Indian with executive councils. For the first time, Indians were allowed to join the executive council of the viceroys and governors. यानी अब कुछ इंडियंस को भी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का हिस्सा बनाया गया. दिस वॉज पॉइंटेड एज अ मेजर रिफॉर्म, लेकिन इनका रोल ज्यादा एडवाइजरी ही था. रियल डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नर या वाइसरॉय के पास ही रहा अभी भी, है ना. So there is a notable point that Satyendra Prasad Sinha's appointment. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. उन्हें अपॉइंट किया गया एज द लॉ मेंबर. ये एक सिंबॉलिक अचीवमेंट था जहां पहली बार एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव पावर स्ट्रक्चर में फॉर्मली शामिल किया गया. So we will be winding up this in summary. So Indian Council Act 1909 is equal to Morley-Minto reforms, introduced separate electorate for Muslims, legalized communal representation in Indian politics, increased size of legislative councils, included Indians in executive council for the first time. Satyendra Prasad Sinha became first Indian law member in Viceroy's executive council. So now with this we will move on to the next topic, that is Government of India Act 1919, जिसे हम मॉन्टेक शैमफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं. Firstly, we will discuss the background of the act. This act was based on the recommendation of Edwin Montag and Lord Chelmsford. है ना. Montag the secretary स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड चैमफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, है ना. सो इट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट फॉर इंडिया. ये पहला ऐसा एक्ट था जिसने डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस द डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल. ये टर्म याद रखना, डायरकी यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्रोविंसेस. नाउ व्हाट एग्जैक्टली वाज डायरकी. डायरकी के अंदर प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. दीज पार्ट्स वर रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स. लेट अस अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम. रिजर्व सब्जेक्ट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स. ये काउंसलर्स गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे. फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, पुलिस एंड इरिगेशन, ये सभी सेंसिटिव एरियाज थे, इसलिए ब्रिटिश कंट्रोल में रखे गए. इंडियन मिनिस्टर्स हैड नो अथॉरिटी ओवर दीज सब्जेक्ट्स. इसका मतलब
इंडियन इलेक्टेड लीडर्स जो थे वो कुछ भी इन मैटर्स में डिसाइड नहीं कर सकते थे। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर असाइंड टू इंडियन मिनिस्टर्स। ये मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल से इलेक्टेड होते थे। दे वर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर्स, मीनिंग दैट दे हैड टू आंसर फॉर देयर वर्क। यानी इनका काम लेजिस्लेचर के ट्रस्ट पर डिपेंड करता था पूरी तरीके से, है ना। सेपरेट कोई इतनी पावर इनको नहीं दे रखी थी। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड लोकल गवर्नमेंट ये कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट या लोकल सब्जेक्ट्स थे, है ना। नेचर ऑफ डायरकी क्या था? सो विद इन द सेम गवर्नमेंट देयर वर टू अथॉरिटीज। एक तरफ ब्रिटिश गवर्नर और उनके काउंसलर्स थे, दूसरी तरफ इंडियन मिनिस्टर्स थे। बट पावर वाज नॉट इक्वल, द गवर्नर हैड ओवरराइडिंग पावर्स। अगर गवर्नर चाहे तो इंडियन मिनिस्टर्स के डिसीजन को कैंसिल भी कर सकता था। This often led to confusion and conflict in administration. सिस्टम स्मूथ नहीं था, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी पर उनके पास कोई रियल पावर नहीं थी। सो द क्वेश्चन इज, वॉज डायरकी सक्सेसफुल? द आंसर इज नो, इट इज फेल्ड ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, है ना। सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंडियन मिनिस्टर के पास असली पावर थी ही नहीं। गवर्नर्स फ्रीक्वेंटली इंटरफेयर करते थे एंड पब्लिक वाज डिससेटिस्फाइड। लोगों को लगा कि ये बस एक सिंबॉलिक रिफॉर्म है, असली कंट्रोल अब भी ब्रिटिश के पास है। ड्यू टू इट्स फेलियर डायरकी वाज लेटर रिमूव्ड फ्रॉम प्रोविंसेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने डायरकी को सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, है ना, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर के कंट्रोल में थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो इंडियन मिनिस्टर्स के कंट्रोल में थे, जो लेजिस्लेचर के लिए आंसरेबल थे, है ना। So, division of the legislative subjects was there. Subject of division were now classified into two broad level. First was central subject, second was provincial subject. प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को हमने और भी फर्दर क्लासिफाई कर रखा था इन लोग इस एक्ट में, जिसमें रिजर्व जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस एक्सेट्रा ये रिजर्व सब्जेक्ट्स में आते थे। ट्रांसफर यानी कि जैसे जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ कंट्रोल एक्सेट्रा ये सारे रिजर्व सब्जेक्ट में आते थे, है ना। रिजर्व सब्जेक्ट का कंट्रोल ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास था, जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए थे, है ना। सो नाउ वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज स्टिल रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के थ्रू। दिस एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। दो हाउसेस थे, काउंसिल ऑफ द स्टेट विच इज अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली विच वाज द लोअर हाउस। So now we will discuss and move on to the next topic, that is Simon Commission 1927. So in 1927 the British government appointed a commission ताकि वो रिव्यू कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का इम्प्लीमेंटेशन को, है ना। दिस कमीशन वाज आल्सो नोन एज द साइमन कमीशन। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। इट हैड 7 मेंबर्स बट नॉट इवन वन वाज इंडियन, और इसी वजह से ये कमीशन हर जगह अपोज किया गया। इंडिया भर में स्लोगन गूंजता रहा, दैट वो स्लोगन बहुत ही एक प्रसिद्ध स्लोगन है, साइमन गो बैक, या आपने सुना होगा, है ना। आउटकम ऑफ द कमीशन वाज दैट द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर लेटर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ड्राफ्ट किया गया। सो इन समरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था। डायरकी 1999 के डॉक्यूमेंट ने प्रोविंशियल लेवल पर इंट्रोड्यूस की, सब्जेक्ट्स को क्लासिफाइड किया 3 लिस्ट में, सेंट्रल, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड में। सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल 1935 वाले एक्ट में किया गया, इसमें नहीं किया गया। Simon Commission came to review this act, faced strong opposition due to absence of Indian members, and its report led to Government of India Act 1935. So now we will go through the Government of India Act 1935. So let's begin. ये एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में एक्ट एक लैंडमार्क था। द एक्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय डिवाइडिंग लेजिस्लेटिव पावर्स इनटू 3 लिस्ट। 3 लिस्ट बन गई थी अब, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉर्पोरेट लिस्ट। जैसे आज के टाइम में सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया था। फेडरल लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस,
है ना। फेडरल लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज एक्सेट्रा। द प्रोविंशियल लिस्ट हैड सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड लोकल गवर्नमेंट। ये उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता था जो प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंटली मैनेज करते थे। द कॉन्करेंट लिस्ट हैड सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस कुड लेजिस्लेट, जैसे क्रिमिनल लॉ, मैरिज, दोनों लेवल पर लॉ बनाया जा सकता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। सेंटर में भी डायरकी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। पहले ये प्रोविंसेस में था, अभी हमने पढ़ा 1919 का एक्ट, उसमें ये प्रोविंशियल लेवल पे था, लेकिन 1935 के एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया एट द सेंटर, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डायरकी मींस। ये मैंने डिटेल में पहले अभी 1919 को जब मैं समझा रहा था, मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। डायरकी का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट, यानी कि दो अथॉरिटीज के बीच में पावर का डिसीजन। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था, सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। इसका सोर्स था मॉन्टेक शैमफोर्ड रिफॉर्म, जिसका एम था इंडियंस को अनलिमिटेड सेल्फ रूल देना, है ना। सो नाउ वी विल कम बैक टू द टॉपिक दैट इज अंडर दिस सिस्टम फेडरल लिस्ट वर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, जिसमें रिजर्व एंड ट्रांसफर थी। ये डिवीजन ब्रिटिश कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए किया गया था। रिजर्व सब्जेक्ट्स वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल इन तीन काउंसलर के साथ मिलकर चलाते थे। दीज काउंसलर्स वर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर्स, मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर के सामने नहीं थी बिल्कुल भी, है ना। ऑन द अदर हैंड द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर हैंडल्ड बाय द गवर्नर विद अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैक्सिमम 10 लोगों की हो सकती थी। एंड दे वर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर, मतलब इनका काम लेजिस्लेचर के विश्वास पर डिपेंड करता था। दिस एक्ट ऑल्सो मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाइकैमरल, है ना। इसने सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल भी बना दिया। सेंट्रल लेजिस्लेचर अब दो हाउसेज में डिवाइड थी। वन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विद अ टेन्योर ऑफ 3 years, और दूसरी थी काउंसिल ऑफ स्टेट जिसका टेन्योर 5 साल का था। 6 प्रोविंसेस ऑल्सो गॉट बाइकैमरल लेजिस्लेचर। 6 प्रोविंसेस को बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी दिया गया। ये प्रोविंसेस थे बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट। इस एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट का भी गठन किया गया, जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इट हैड वन चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 6 अदर जजेस। ये कोर्ट के पास ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन था। ठीक है। दिस मीन्स दैट इट कुड हियर न्यू केसेस, अपील्स एंड इवन गिव लीगल एडवाइस। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। नाउ सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट ने कुछ नए इंस्टीट्यूशन का भी गठन किया था। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फॉर्मेशन इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था 1935 में। इट ऑल्सो अलाउड फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन एट फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट लेवल्स। ये सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट का आगे जाके बैकबोन बना। So finally, we will move on to the Indian Independence Act 1947. This act was passed by British Parliament. ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सके। ये वो एक्ट है जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने, है ना। द एक्ट क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश थे, नॉट अंडर ब्रिटिश रूल एनी मोर। ईच डोमिनियन वॉज टू हैव इट्स ओन गवर्नर जनरल। दोनों देशों के पास अपने अलग अलग गवर्नर जनरल होगा, जो उसके हेड ऑफ द स्टेट भी होंगे, है ना। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज अलाउड टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज, है ना। उनके पास उनको अलाउ कर दिया गया कि नाउ दे कैन हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज। ये असेंबलीज अपने देश के लिए लॉज बनाएंगी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगी। टू ड्रॉ द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अ स्पेशल कमीशन वाज फॉर्म। इस कमीशन का नाम था रेडक्लिफ कमीशन, और इसके चेयरमैन थे सर सिरिल रेडक्लिफ। ये कमीशन ने डिसाइड किया कौन सा एरिया इंडिया में आ जाएगा और कौन सा पाकिस्तान में। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन को सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया डोमिनियन इंडिया का।
ये पोस्ट उन्होंने होल्ड किया 1947 से 1948 तक। आफ्टर हिम सी राजगोपालाचारी बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर और वो बने फ्री इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल इन 1948। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, गोपालाचारी was the last governor general of India too. So a quick recap, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग देश बने, हर एक के पास अपना गवर्नर जनरल था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के लिए। सर रेडक्लिफ ने बाउंड्री डिसाइड की, लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने आजाद इंडिपेंडेंट इंडिया के, एंड सी राजागोपालाचारी पहले इंडियन और लास्ट गवर्नर जनरल थे। सो विद दिस वीडियो इज कंप्लीट। इसके बाद हिस्ट्री का एक पोर्शन और बच रहा है, दूसरी वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद we will bring a video that will be only on the that will consist only the MCQs, है ना। और इन दोनों टॉपिक से हिस्ट्री के अंदर जितने भी ये टॉपिक हैं, अगला जो टॉपिक होगा दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। तो इन दोनों को मिला के फिर सिर्फ हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें वी विल डिस्कस ओनली द MCQs of the last year, है ना, from this portion. So with this I will be taking a leave now, so we will be meeting in the next video.